running for some time. And same way, we operate the cranes very slowly, so that their wires become normal. With the movement, the flexibility is regained once they become so brittle. So this is a very simple precaution. So as an officer of the watch or as an officer on stations or wherever you are, that you must guide the people कि अरे थोड़ा इसको पहले let it go slowly, let it get warmed up, जिसे हम normal देसी भाषा में कहते हैं. So let the rope come back to the normal flexibility. Periodic examination again shall be carried out by competent persons. And in order to determine the frequency of periodic examination, consideration shall be given to statutory requirements. वो भी हम देखेंगे. Covering the application in the country of use, type of crane and whether environmental condition in which it operates. किसके examination क्या है, how often it should be examined, what the law says, and how often we should do it. Results of previous examination, length of the time the rope has been in service. So all these criteria basically depends how often you can carry out the examination by a competent person. Special examination, of course, anytime shall be carried out if an incident has occurred which could have caused damage to the rope or its termination. ये नहीं कि we are very hard and fast कि नहीं भाई 1 साल के बाद ही after 1 year only inspection होनी है या 5 year के बाद testing होनी है. No, this is the idea to keep the gear because the things are moving. So in case something has happened, the wire has entangled or come out of the sheave or come out of the drum. So we can have a thorough inspection कि हाँ यार ये रोप ठीक है कि खराब तो नहीं. I think very common. आजकल तो of course for lifeboats and all that, we are all the time careful, isn't it? We always keep the men ठीक है यार sheaves में देखते रहना wire is moving properly in the sheaves or not. And मैंने खुद experience किया है sometime. Of course things are not changing. The jump out of the sheave. cheek plate and sheave के बीच में आ जाती थी. खत्म, वायर इज गॉन. चाहे वो टूटेगी नहीं दिखते हैं बट चाहे वो फ्लैटेंड हो गई है उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है. नो पॉइंट टेकिंग रिस्क. सो दिस इज व्हाट द स्पेशल एग्जामिनेशन इज. एनी टाइम इफ एनीथिंग हैज हैपेंड विद द वायर, टेक एन एग्जामिनेशन, टेक अ डिसीजन. बेटर बी सेफ. इवन उसका रोप डाया कम हो गया, फ्लैटेंड हो गई है, कुछ भी हो गई है, इसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी. And if the crane has been out of operation for 3 months or more, the rope should be examined prior to recommencement. वो तो हमने देख लिया कि 3 months क्या है. Before any cargo work, before we operate the cranes, we'll have an examination. Now, testing of the steel wire. कैसे की जाती है testing? Anybody has an idea how these wires are tested? How you take that? इसका breaking stress कितना है? कोई भी नई वायर आपके पास आती है, do you apply the formula or you have any other method of testing the wire? Any idea if anybody has got, so that ताकि मैं आपको दोबारा डायनामोमीटर यूज करते हैं. हाँ जी, डायनामोमीटर. yeah, no, that is dynamometer is used for testing of your cranes. स्टील वायर जो है, आपने स्टील वायर मंगाई है, कोई भी वायर मंगाई है फॉर गैंगवे, फॉर प्रोविजन क्रेन, फॉर किसी भी चीज़ के लिए आपने वायर मंगाई है, तो आप उसको कैसे एस्टिमेट करते हो कि यार उसका जो सेफ वर्किंग लोड है वो कितना होना चाहिए? तो वो डायमीटर से कुछ फॉर्मूला होता है, उससे निकाल लेते हैं और फिर उसको सर्टिफिकेट में लिख के आता है, क्योंकि हर वायर रोप के साथ में सर्टिफिकेट आता है, उसमें सब लिखा है. ओके, देखिए, वेरी गुड. अब बच्चे इसकी हमें थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि यस, अब ये जो वायर्स हैं व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री, अब ये तो कंटिन्यूस लेंथ में बनती है. अब हम तो एक छोटा कॉइल मंगाते हैं 200 मीटर का, 220 मीटर का, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए हम उतनी कहते हैं. सो वायर्स आर नॉट मेड फॉर 100 मीटर 200 मीटर की लेंथ में तो बनती नहीं. सो दे आर ड्रॉन व्हाटएवर दैट दे हैव दिस. इसके अंदर जो भी मिक्सचर उन्होंने डालना है स्टील में, फिर वो वायर को बना के फिर वो वायर्स को कंटिन्यूस लेंथ में बनाते हैं 1000 मीटर 2000 मीटर, एंड फिर उसमें से वो काट के आपके कॉइल्स बना देते हैं एज पर ए रिक्वायरमेंट. अब जब ये वायर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, देन वन ऑफ द अथॉरिटीज, चाहे वो हमारी क्लास के ही बंदे हो, आई मीन क्लासिफिकेशन सोसाइटी या जो भी
4 पीपल हैं जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सो वो वहाँ पे जाते हैं। देन सैंपल ऑफ द वायर, जो आपकी वायर बन रही है उसका एक सैंपल 1 या 2 मीटर लंबी वायर को काटेंगे और उसको, उनके पास मशीन है, मशीन क्या, दे जस्ट बेसिकली पुल द वायर। सो दे जस्ट पुल द वायर, दे अप्लाई द लोड ऑन इट, एंड उसके साथ उन्होंने मीटर लगाया हुआ है कि कितना लोड अप्लाई कर रहे हो। तो एक स्टेज आएगी व्हेन द वायर पार्ट्स, सो दैट इज द बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। सो वो जो आपकी लेंथ ऑफ वायर बन रही है, बिकॉज उसका सारा कुछ मटेरियल उन्होंने देख लिया, कार्बन कितना, स्टील कितना, क्या चीज़ कितनी है, एंड अब उन्होंने उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया कि भाई इतने स्ट्रेस पे, इतनी फोर्स पे ये वायर टूट गई, 10 टन 12 टन। सो दैट देन द सर्टिफिकेट, देन दैट अथॉरिटी इशूज अ सर्टिफिकेट कि भाई इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इतने टन है, and then you apply your safety factor and you come to know that this is a safe working load, I am going to use this wire. Otherwise आपका देसी फॉर्मूला रिपीट करेंगे एक बार, एक्सक्यूज मी सर, सर इसको रिपीट करेंगे जरा दोबारा से इसका टेस्टिंग वायर रोप का। या वायर रोप जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, सो फैक्ट्री में व्हेन दीज वायर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंटीन्यूअस लेंथ मे बी 1000 2000 मीटर्स, फिर उसके बीच में से इसके अलग अलग कॉइल जितनी रिक्वायरमेंट हो काट के बनाए जाते हैं। बट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर व्हेन दिस सम अथॉरिटी, आप किसी अथॉरिटी को फैक्ट्री ओनर बुलाएगा कि ये लो भी टेस्टिंग है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सो दैट सर्वेयर विल कम एंड ही विल सी दैट 1 or 2 मीटर्स की लेंथ का वो पीस उस वायर में से काटेंगे। उसके पास, उनके पास मशीन है जिसपे कि वो उस वायर को दोनों तरफ से पुल करेंगे, एंड बीच में उन्होंने एक मीटर लगाया कितनी फोर्स लगा रहे हैं, and then they keep applying the force and stage comes when the wire breaks. So जब जिस लोड पे वो वायर ब्रेक करेगी, the surveyor is watching, so then he knows, then he says कि अच्छा भी 10 टन या 12 टन इतनी लोड पे this is the breaking stress of the wire. So this is called the destructive test of the wire. यानी कि पूरी की पूरी वायर, उसमें से सैंपल निकालेंगे, 1 और 2 मीटर का सैंपल है, चलो भी आगे वायर मैन्युफैक्चर हो रही, इट इज़ अ कंटिन्यूस लेंथ, ये तो है नहीं कि हर पीस को हम काटते रहेंगे। फिर आपके सर्टिफिकेट आपने रिसीव की होगी वायर्स, यू गेट दैट सर्टिफिकेट दैट इट इज़ बीन सीन बाय लॉयड्स, और जो भी सर्वेयर है उसने वो सर्टिफिकेट इशू किया बिकॉज ही हैज सीन दैट टेस्ट ऑफ द वायर, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। फिर हम सेफ्टी फैक्टर उस पर लगाते हैं 5 या 6, एंड देन वी यूज द सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड जो है वही आपने उस वायर पे लगाना है। वायर में भी ब्रेकिंग एट 10 टन और 12 टन, but if the safety factor is 6, then we apply only 2 ton of load ताकि उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट ना। 6 टन, अगर 12 टन ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो 12 टन पे हम उस वायर को नहीं ले जाएंगे, फिर तो टूट जाएगी। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड सेकंड है आपका जो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं 15d स्क्वायर अपॉन 500 6 21d 20d स्क्वायर 21d स्क्वायर, दैट इज 6 by 12 6 by 24 6 by 37 उन वायर रोप्स का। So they are found with this formula, it almost matches the destructive test also. जितनी वहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है तो ये भी almost, but this is if you ask me some empirical formula. So correct method of estimating the breaking stress is from the certificate which is issued by the authority and they have seen the destructive test. So कभी भी आपको वायर यूज करनी है open the certificate, and जब भी वायर रिसीव करोगे as a chief officer, I don't mean that you have to do it yourself. जो भी आपके पास you have your people with you कि भाई वायर रिसीव कीजिए, उसका सर्टिफिकेट, उसका नंबर, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट जो है इस रोप को बिलोंग करता है, इस वायर कॉइल को बिलोंग करता है। ये आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी होती है। आपने सर्टिफिकेट तो फाइल में बहुत अच्छी तरह डाल दिया, बट विच सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू विच रोप, विच कॉइल ऑफ द वायर, दैट समटाइम बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो आजकल तो आपने देखा है as compared to our time, their inspections are more. Every port कोई ना कोई बंदा चला रहता, चाहे वो PSC, चाहे वो पोर्ट कार्गो ब्यूरो, चाहे सेफ्टी, चाहे ऑडिटर्स, चाहे कुछ भी, कोई ना कोई चला ही रहेगा। तो इसके लिए प्लीज अरेंज योर दिस वायर्स विद सर्टिफिकेट्स। ये लो जी, ये वायर, इसका ये सर्टिफिकेट है। जब आपने चेंज किया तब भी आपने जो रेडी रेकनर अपना जो बना के रखा है कि ये क्रेन की वायर, दिस इज अ सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू दिस। तो जब हम देखेंगे बट व्हेन वी कम टू दिस चेन रजिस्टर एंड ऑल दैट, जब आपकी इंस्पेक्शन होती है कार्गो गियर की, सो समटाइम दे पॉइंट आउट कि ओके चीफ, आपने ये जो वायर लगाई है इसका सर्टिफिकेट बताइए। सर्टिफिकेट तो मेरे पास सारी वायर्स के, वो कहेंगे हाउ डू यू नो दैट दिस सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू दिस वायर।
तो कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए एटलीस्ट, देन दे कैन ट्रस्ट यू कि हाँ भाई सिस्टम इज वर्किंग ऑन द शिप, कि भाई जब हम वायर चेंज करते हैं, ये वायर अब रिसीव की थी, इस दिन चेंज की थी, ये देखो सर्टिफिकेट के ऊपर पेन से पेंसिल से आप लिख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट तो सब दिखा देंगे, बट द जो अथॉरिटी आई है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो भी आया है, उसको ये कन्विंस करना कि हाउ डू यू नो दैट दिस सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू दिस वायर जो आपने यूज कर दिया। वायर तो यूज में, उसके ऊपर तो कोई मार्किंग नहीं, तो ये आपने कोई ना कोई सिस्टम रखना है। सो दीज सैंपल्स आर यूज्ड फॉर टेंसाइल टेस्ट टू डिस्ट्रक्शन, टेस्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑफ द रोप एंड टेस्ट on a mixture of individual wires with regard to dia, tensile, strength, torsion, quality, galvanizing। ये सारी चीज़ आपके सर्टिफिकेट पे लिखी हुई आ जाएगी कि उस वायर की क्या कंडीशन है, क्या टाइप है, कितनी उसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग है, किस टाइप की है। Each coil of wire is accompanied by a certificate of conformity and a test certificate showing guaranteed minimum breaking strength of wire when new। ये भी आपके मन में होना चाहिए। So वो स्ट्रेंथ जो गारंटी कर रहा है, that is again when it is new। अब 1 साल तक मैंने उसको अपने स्टोर में रख दिया, but if it is kept in good condition, there is no harm, there is nothing goes wrong। अब आपका आ जाता है डिस्कार्ड क्राइटेरिया। Now discard criteria is general. The safe use of wire rope is qualified by following criteria: nature and number of broken wires at the termination, localized grouping of wire breaks, the rate of increase of wire breaks, fracture of strands, reduction of rope dia including that resulting from core deterioration, and decreased elasticity, external internal wear, external internal corrosion। ये सारा हम चेक कर सकते हैं। सो डिस्कार्ड क्राइटेरिया एक ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि हाँ जी ठीक है, 10% wires are broken in 8 times the diameter, wire is discarded। That is not the only discard criteria। There are so many things। As a chief officer I will see कि overall condition जो है वायर की क्या है, damage due to heat or electric arcing, rate of increase of permanent elongation, डाई कम हो गया, स्ट्रेच होगी वायर, दिखने में बिल्कुल अच्छी दिख रही है। So all examinations shall take into account these individual factors recognizing the particular criteria। So चाहे वो आपके returns हैं, चाहे वो orals हैं, I hope you will be able to explain to the examiner कि these are the things which actually come into my mind and this we will see before I can discard a wire, उसकी overall condition कैसी है। However, deterioration frequently results from a combination of factors giving a cumulative effect which should be recognized by a competent person and which reflects the decision to discard the rope or to allow it to remain in service। So in short, what are the parameters to monitor? Broken wires, decreasing rope dia, fracture of strands, corrosion, wire rope deformations, waviness, baskets, core or strand protrusion, distortion, wire protrusion, flattened portion of the rope, kinks। कितनी चीजें हैं which can take place, बस वायर तो मूव कर रही है। In a vessel, visual inspection is necessary to determine the global condition of the rope। The local reduction is the result of core break। Rope shall be discarded immediately। Visual signs, local damages, basket or bird cage, and deformations of one of the several strands, wire protrusion, kinks, looped wires, and sphere corrosion is a cause for discard। So corrosion is the biggest factor कि yes, but corrosion है कहीं भाई टेम्परेरी है कि yes, अगर आप उसको वायर ब्रश करके ठीक है, वायर के अंदर से कंडीशन ठीक है, and it is important to discard the rope as soon as the discard criteria appears। From this moment the rope deterioration may increase quicker than expected। So ये सारी चीजें कितने factors हैं, of course very briefly I have written कि इसको अगर हम बहुत डिटेल में जाएं। So this is few images, few pictures which will help you। यहाँ देखिए वायर ठीक दिख रही है, बट ये वायर्स बाहर निकलनी शुरू हुई, अगेन वायर इज कमिंग टू बी रिप्लेस्ड। ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड
ये एक स्ट्रैंड होता है, देखो इसके अंदर कितनी वायर्स दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड वन स्ट्रैंड, ये दीज आर कॉल्ड द स्ट्रैंड्स, एंड दीज स्ट्रैंड्स आर मेड बाय थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स को 12, 24 या 37 वायर से एक स्ट्रैंड बनाया। अब ये स्ट्रैंड ही चाहे कहीं पे भी लगा, कुछ भी हुआ, बाहर आ गया, खत्म, टोटली वायर टू बी डिस्कार्डेड, गई इसकी स्ट्रेंथ। डिस्कार्डिंग का मतलब क्या है, इफ यू सी दीज एनी ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग मींस इसकी स्ट्रेंथ गई, रिड्यूस स्ट्रेंथ होगी। ये तो पूरा हार्ट ही उसका बाहर आ गया, कोर हैज कम आउट, फ्लैटेंड पोर्शन ओपनड अप हो गई वायर। अब ये लोकल रिडक्शन इन डाया, किंक, किंक का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई नॉट आ जाएगी, वायर में नॉट नहीं, बट मीन्स इट हैज बेसिकली कहीं ना कहीं ये एंड पे कहीं ना कहीं लगी है, जहाँ पे ये वायर बेसिकली मुड़ गई, ये भी किंक, कभी से भी पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। वेवीनेस, ये आपकी क्रेन वायर सर, हाँ जी सर किंग्स आने के चांसेस तो बहुत होते हैं, किंग्स तो आ सकते हैं इजीली ना। यस बच्चे, वही कह रहा हूँ, देखिए क्रेन वायर स्पेशली मैंने कहा, क्रेन वायर जो है देखिए आपको ऐसी ब्रेडेड टाइप दिखेगी वायर्स एंड ऑल। तो वैसे तो वायर्स बनाई होती हैं कि नॉर्मल वियर एंड टियर तो दे कैन बर्दाश्त कर लेंगी, बट अगर कहीं ना कहीं अटकती है वायर, कहीं क्लीट में आ गई, कहीं पे भी आ गई, कार्गो गियर में कहीं अटकी, आपके पास एक सिंपल चीज जहाँ पे आपको डाउट होता है, इट मे बी कॉस्टिंग फ्यू थाउजेंड या $500-600, what is $500-600 where the safety of life is concerned, बट हम उतना भी नहीं कर रहे। बट अगर एनी स्टेज ये चीजें आपको इसमें से कुछ भी दिखती है, दिस इज कॉल्ड बास्केट डिफॉर्मेशन, खुल गई है वायर। आप नॉर्मली बचपन में हम करते थे ना, अगर आप एक धागे को या दो धागों को सीधा 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 पकड़ के खींचिए, आप उसको वो टूट जाएंगे। अब उन्हीं धागों को आप आपस में एक रोप बना दीजिए, कॉइल कर दीजिए, आप खींचिए नहीं टूटेगा। तो यही चीज़ वायर की स्ट्रेंथ में होती है, जब इसका ले बनाए, जब वायर बनाई गई है तो इसकी स्ट्रेंथ तब आती है, ये वायर खुल गई तो इसकी स्ट्रेंथ गई। अब दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इवन मोस्टली इफ यू हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया दिस EMSA पीपल कम विद दिस टाइप ऑफ कैलिपर्स। तो आप इसको करेंगे ना, एक को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में, यू कैन ओपन द वायर एंड सी द कंडीशन ऑफ द इंटरनल वायर्स। इससे वायर कुछ नहीं होती, डैमेज नहीं होती, हाथ से वायर खोलनी बड़ी मुश्किल होती है, बट दिस कैलिपर्स यू कैन ओपन दिस। अब हमारे यहाँ पे आई डोंट नो इफ वी हैव एनी इंस्टीट्यूट जहाँ पे सीमेंस और अदर पीपल इफ दे ट्रेन, वी शुड हैव दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू शो यार वायर को आपने कैसे देखना है। सो दिस इज टू लुक इनटू द इंटरनल कंडीशन की इंटरनल कोरोजन जो है, बाहर से तो वायर ठीक दिख रही है, सो दोज पीपल कम, अब वहाँ पे तो है, चाहे वो बल्क कैरियर जाते हैं, चाहे कौन से दूसरे शिप्स जाएंगे। अब हम कहने को हम कहते हैं यार EMSA इज़ वेरी यू नो बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तंग करते हैं, बट अगर आप उनको देखिए, उनके रूल रेगुलेशन सेफ्टी के लिए बने हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ है जिससे आप उसकी इंटरनल कंडीशन देख सकते हो या एक्सटर्नली, तो हम देख ही सकते हैं। चलो ये तो था वायर्स का। आई होप you will be able to take better decision today that when you go back on the ships कि हाँ यार कोई भी वायर है, किसी भी स्टेज में है, even if after your exams you may be second officer, you are handling gangway, अब आपकी जो थोड़ी सी सोच है, आई एम वेरी श्योर कि आप जाओगे, यू नोटिस एनीथिंग, ब्रिंग इट टू द चीफ ऑफिसर्स नोटिस कि सर मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जरा आप हैव अ लुक। नॉलेज का वही फायदा है ना कि यू शुड बिकम एन एसेट टू द वेसल। So that is my idea that tomorrow you go even with your masters, things rank की नहीं बात होती कि आप second officer हो, chief officer हो, but the way you look at the things, the way you operate the things, वो knowledge से आता है। चलो ये तो था आपका वायर्स या क्रेन्स या कार्गो गियर क्या है। आई एम नॉट टचिंग ऑन द डेरिक्स एंड ऑल दैट बिकॉज दैट इरा इज गॉन। डेरिक्स क्या होती है, कैसे उसको करते हैं। इन केस इफ यू नीड एनी थिंग अबाउट द डेरिक्स, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई क्वेश्चंस हैं, देन
I will take up that matter or send you notes about derricks, but otherwise आज और फ्यूचर में आई थिंक ये चीज़ें तो रहने वाली हैं. So now we come to the next part is your cargo gear